होता है कि वाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, यू आर एबल टू डू इट इजीली। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन it's good to go with more than two wives of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Don't rely only on the two wives of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Like Hazrat Khadija और Hazrat Aisha पे खाली rely नहीं करना. It's good to go with more, and I will show you few question paper जिसमें दूसरी wives भी एग्जाम में आई हुई हैं, but you are able to manage your paper. आप A स्टार पे नहीं जाएंगे, शायद A पे चले जाएं उसकी वजह से। Okay, so Hazrat Khadija and Hazrat Aisha are the two wives which shouldn't be skipped at all. First of all, we will talk about Hazrat Khadija and Hazrat Aisha. पहली चीज तो ये आपने क्वेश्चन की वर्डिंग देखनी है। हजरत खदीजा पे तो अगर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट हो तो भी उनकी पूरी लाइफ ही ऑलमोस्ट आ जाती है, बट फॉर हजरत आयशा इफ इट्स रिटन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू नीड टू मेक श्योर कि उसके आगे का जितना भी आप डिटेल लिखते हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, और कई बच्चे मिस्टेक करते हैं एंड समटाइम्स यू डोंट रीड द क्वेश्चन, वो आपसे आगे का भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है। Suppose if the question is asked about Hazrat, write an account of Prophet's wife Hazrat Aisha. It's covering the whole life of Hazrat Aisha. But if they are saying during the time with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is restricted to marriage life only, and that's just 10 years, almost 10 years. Hazrat Aisha के Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam के साथ जो married years हैं, वो migration to Medina के बाद हैं, it's almost 9 to 10 years. तो उसी पे ही focused होगा। अब now you have limited timeline जिसके ऊपर आपने detail लिखनी है 10 mark की, वो मैं डिस्कस भी करूंगा। What is missing in my handout here about Hazrat Aisha and what is very important, we need to talk about that. वो मैंने उसको अलग से डिस्कस किया हुआ है, मैंने पहले आपको एक टॉपिक में वो एक्सप्लेन किया था, but I will tell you what was that event here, what is something which needs to be added, वो भी मैं यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस करूँ। हजरत खदीजा का टॉपिक बहुत ईजी है, ठीक है, एंड whenever the examiner is asking you about 10 mark on हजरत खदीजा तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है। What are the key things which should be there in your answer? If the question is general note on Hazrat Khadija, you will talk about her early life, her previous husbands, the kids from the previous husbands. It will be good to write about them. अगर examiner कहता है मैं आपको questions दिखाता हूँ different तरह के, write an account of Hazrat Khadija's life. So again it covers her early life, it covers Prophet's time period. Of course she died during the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, तो वो पूरा discussion वहाँ से आएगा। लेकिन अगर वो कहता है ड्यूरिंग हर टाइम विद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आफ्टर मैरिज विद होली प्रॉफिट, तो योर फोकस विल बी ऑन मैरिज के बाद का पोर्शन। अगर आपसे पिछला पोर्शन मिस भी हो गया, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड समटाइम्स दे से फ्रॉम फर्स्ट वही टिल हर डेथ, तो योर फोकस विल बी ऑन हर रोल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वही ऑनवर्ड। हजरत खदीजा का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपके पास 3-4 रेफरेंसेस भी हैं, बाकी वाइफ्स के अंदर रेफरेंसेस इतने ज्यादा नहीं है, बट इफ यू टॉक अबाउट हजरत खदीजा आपके पास रेफरेंसेस हैं, अपार्ट फ्रॉम कुरानिक वर्सेस भी हैं और हदीस भी हैं। कुरानिक वर्स ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मैरिज हुई हजरत खदीजा के साथ, तो वी गिव अ रेफरेंस ऑफ सूरत दोहा एज वेल, जो फाइनेंशियल रिलीफ है वो यहाँ पे मेंशन होगा। What are the main outlines of Hazrat Khadija? Her early life, like previous husband, she was twicely widowed. The names of the kids from the previous husbands. It will be a good thing to write about that one. And you all know how she got connected with Holy Prophet, how she came to know about Holy Prophet, Prophet's honesty, trustworthiness, and then the role of the person who accompanied Hazrat Holy Prophet ﷺ in the journey. Maisara's name should be there. And then Hazrat Khadija's marriage proposal to Holy Prophet, Prophet's acceptance after consulting the uncle. These are developed. एक paragraph आपके आंसर में आएगा. Age of Holy Prophet, age of Hazrat Khadija is going to be mentioned there. The names of the kids which they had, you are going to talk about that. ठीक हो गया। अब आ जाता है हजरत खदीजा की सर्विसेज में। Her financial support for Holy Prophet, reference of Surah Doha. Second, moral support for Holy Prophet, focused on worshipping. And जो Prophet sallallahu alaihi wasallam meditate कर रहे होते थे in the cave of Hira, her role at that time. And then her role बिल्कुल नहीं मिस होना चाहिए at the time of first wahi. There is a big detail there. There is a paragraph over there about her role, how she comforted Holy Prophet when Prophet has first exposure to the Hazrat Jibreel alayhi salam. यहाँ तक समझ आ गया? What did she do? What did she do herself? And where did she take Waraqa bin Nawfal का आप discussion करेंगे, and overall steps which she took to comfort and cool down Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at that time. First woman to accept Islam. Then you will develop it further, and then the way Prophet faced persecution and what was her role at home to comfort Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. You will write her role at the time of social boycott as well. Social boycott की detail आएगी. The way she tried to arrange food, जो multiple double amount prices पे कि she, like you can say, emptied her treasury for this purpose, कि वो multiple amount भी उन्होंने भेजी. And then her death, you're going to talk about. After that, year of grief is going to be discussed there. साथ में prophets की saying about Hazrat Khadija, and Hazrat Khadija, if she has titles, you will talk about that one. This is how your answer will be there.
I have mentioned few points about Hazrat Khadija here, but again, I will suggest you to plan and restructure your own. Here, what is missing here? Oh, not nothing is missed, by the way, but you can add more points in it. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, once he was discussing with his and Hazrat Aisha के साथ एक दफा discussion कर रहे थे, and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was remembering Hazrat Khadija, and Hazrat Aisha said that she was an old woman, she died, Allah has blessed you with better wives. So Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam reacted. Last paragraph में देखें, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, actually hadith पूरी नहीं है. Prophet said, never. Indeed, Allah did not grant me better than her. She accepted me when people rejected me. She believed in me when people doubted me. She shared her with. तो ये एक बड़ा strong reference है. Even about her house in the paradise. एक दफा Prophet ये हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के भी अंदर भी वो हदीस यूज कर सकते हैं. Best 4 women Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिस्ट डाउन की, उसमें तो खदीजा है, हज़रत फातिमा है, और दो और कौन है? हजरत आसिया द वाइफ ऑफ फिरौन है, एक और वुमेन है, 4. हजरत मरियम द मदर ऑफ हजरत ईसा. ये आपको मल्टीपल जगह रेफरेंस हेल्प करेगा. हजरत ईसा के ऊपर आप थीम बेस्ड क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो भी हेल्प करेगा. हजरत खदीजा भी करेगा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी करेगा, तो वो रेफरेंस आप वहां पे यूज कर सकते हैं. कुछ और भी हदीसें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी आप ऐड कर सकते हैं. ताहिरा, द टाइटल वाज गिवन टू हर बिकॉज ऑफ चेस्ट कैरेक्टर इवन बिफोर इस्लाम. तो खदीजा का टाइटल भी आप मेंशन कर सकते हैं. शी आल्सो हैड अ टाइटल ऑफ अल कुबरा, द फर्स्ट. इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि प्रॉफिट डिड नॉट मैरी एनी वुमेन ड्यूरिंग हर लाइफ, लाइक द प्रॉफिट्स लाइफ मैरिज विद हजरत खदीजा. 15 years मैरिज लास्ट की हजरत खदीजा. No, 25 years. Marriage lasted for 25 years. So Prophet ﷺ did not marry any other woman at that time. That shows the Prophet ﷺ understanding and connection. कुछ बच्चे यहाँ और भी points लिखते हैं कि once हजरत खदीजा's sister came, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसके साथ भी इवेंट था रिलेट कर सकते हैं. इट रिमाइंडेड होली प्रॉफिट ऑफ हजरत खदीजा. तो इट्स अप टू यू. ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर तो बुक्स लिखी गई हुई हैं. तो बट प्लान एंड स्ट्रक्चर योर आंसर. डोंट गो इन दैट डेप्थ कि यू आर नॉट एबल टू वाइंड अप द आंसर. ये सारी चीजें आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है. So you can write it. Okay. Now I'm moving to Hazrat Aisha's topic first, then I'm coming to the other wives of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam as well. When I talk about Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा, क्योंकि ये दो wives हैं जिसके ऊपर 10 मार्क के questions आए हैं. So first I will move to Hazrat Aisha's topic, the daughter of whom you're going to talk about it. You can talk about her brother's name, her sister's name, and their role even could be mentioned there briefly. Like her sister's name was Asma, who was also a big supporter for Islam, and she arranged food for Holy Prophet. Cave of Thor, आप उसको वहां पे लिंक कर सकते हैं. Her brother was the one who was responsible to bring news to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes, Hadi, you have raised the hand. Sorry, I did not see your hand is raised. You have question or something? Yes, Hadi. Okay, I think you mistakenly raised it. Okay. Anyway, so I was talking about Hazrat Aisha's early life, her family, and brief discussion. Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा, Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब इसमें मेरे हैंडआउट में 3 चीजें मिसिंग है, पहले वो आपको बता देता हूँ. One is Hazrat Aisha के साथ मैरिज के लिए Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, according to the hadith of Holy Prophet, she was shown to her in his dream, and he saw Hazrat Jibreel showed a face of a woman wrapped in a silk cloth. It was told she will be your wife in this world and life hereafter. वो रेफरेंस यहाँ पे ऐड किया जा सकता है कि Prophet got married to Hazrat Aisha on the recommendation or on the instruction of Allah. तो वहां से आप इसको मेंशन कर सकते हैं. Daughter of Hazrat Abu Bakr. One of the reason behind marriage was to strengthen his ties with Hazrat Abu Bakr also. बाकी marriage की age different books में different है. So there is no need to write the exact age. You will mention she got married to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Marriage contract पहले हो गया था मक्का के अंदर, और जो रुखसती है, जो मैरिज की कंप्लीशन है, दैट वाज डन आफ्टर माइग्रेशन टू मदीना. हजरत आयशा माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना with not with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, because Prophet sallallahu alaihi wasallam के साथ अबू बकर खाली थे. Prophet sallallahu alaihi wasallam की बाकी डॉटर्स में हमने डिस्कस किया है कि they migrated with हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, क्योंकि हजरत सौदा के साथ मैरिज पहले हुई है. प्रॉफिट की हजरत आयशा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था मैरिज का, लेकिन मैरिज कंप्लीट नहीं हुई थी, वो बाद में हुई. हजरत सौदा इज द सेकंड वाइफ इफ वी से इन सीक्वेंस के अंदर. अगर हम जाते हैं, आपको कई बुक्स में हजरत आयशा भी मिलेगा, कुछ में हजरत सौदा. उसका रीजन बता रहा हूँ. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हजरत आयशा से हो गया था, लेकिन जो प्रॉपर मैरिज कंप्लीशन पहले हुई वो हजरत सौदा के साथ हुई. हजरत आयशा के साथ रुखसती सारा बाद में हुआ है. तो दैट्स व्हाई वी काउंट हजरत आयशा एज द थर्ड वाइफ इन द सीक्वेंस देयर. यस,
नो उसमें डिटेल है, वो डिस्कशन है, क्योंकि उस वक्त की एज कैलकुलेशन भी नहीं है, तो अगेन देयर इज डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दैट एंड दैट इज नन ऑफ आवर डिस्कशन, हमारी रिलेट नहीं करती। वहां का जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशन एंड द कल्चर टुडे। तो आज के साथ आप इसको वैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वहां पे अर्ली एज में हो जाता था, क्योंकि उनका ट्रेडिशन ये था कि एक पेरेंट्स बड़े जो होते थे फैमिली के, उनके पास इतनी अथॉरिटी होती थी कि वो एक कर देते थे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है, बट द पर्सन हैज अ राइट टू कैंसिल इट लेटर ऑन व्हेन द पर्सन ग्रोज अप। तो एक अलग डिस्कशन है। तो और उस वक्त तक इस्लामिक रूलिंग्स जो अभी आजकल के लिहाज से आप कनेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोसेस ऑफ बीइंग रिवील्ड भी थे, क्योंकि हजरत ज़ैनब की हम मैरिज देखते हैं, वो नॉन मुस्लिम के साथ थी उस वक्त, बट इट डजंट मीन कि वो एक प्रूफ मिल जाएगा कि प्रॉफिट डॉटर गॉट मैरिड टू अ नॉन मुस्लिम, राइट, क्योंकि वो सिचुएशन और चीजें ग्रेजुअली रिवील हो रहे थे उस वक्त। तो अच्छा, Hazrat Aisha, because the time she got married, that was, there is no doubt, that was very early age, like early teenage था, and she was at the age जिसमें वो इस्लाम को, रिलीजन को, चीजों को बहुत keenly observe कर रही थी, and she was learning the things at that time. So that's the reason why she has memorized and forwarded most number of hadith. अगर women में सबसे ज्यादा किसी ने hadith narrate किया, तो that is Hazrat Aisha रज़ी अल्लाह अन्हा. And not only the hadith, she was intelligent, quick-witted, well informed on religious historical matters. Even it is said that medical जो उस वक्त की researches थी, उससे भी she was familiar with that one. Okay, and because of the wisdom she was having lots of information, and then he forwarded. Even she memorized the verses of the Quran as well. So you can talk about that one. This paragraph is general paragraph which could be used for many wives के सबके लिए. Modest, pure, pious, extremely tender-hearted. Then Hazrat Jibreel specifically greeted her and during her lifetime. ये तो एक जनरल चीज है। हजरत आयशा का जो रूम था, दैट इज द रूम वेयर अ लॉट ऑफ कुरानिक वर्सेस वर रिवील्ड। आज मैं एक स्टूडेंट का आंसर चेक कर रहा था, वेज ऑफ रेवलेशन ऑफ कुरान, तो उसमें वहां बस बच्चे ने पॉइंट आउट किया, दैट्स अ गुड पॉइंट, कि one most of the time the wahi was revealed in the room of Hazrat Aisha radhiyallahu anha. That shows the significance of Hazrat Aisha also. So you can add that point there. And Prophet sallallahu alaihi wasallam received most of the verses, अगर maximum verses देखी जाए जो रूम में रिवील हुई हैं किसी वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट की, तो हजरत आयशा की वजह से कुरान की बहुत सारी वर्सेस रिवील हुई हैं। एंड दिस इज व्हाट इज मिसिंग इन माय हैंडआउट। फॉर दिस आई विल सजेस्ट यू टू स्क्रॉल इट डाउन, और आप जब आगे फर्दर जाते हैं, यहाँ पे यू विल फाइंड सम, हजरत खदीजा में भी है बहुत ज्यादा ये बुक का मटेरियल, दैट इज आई टुक इट फ्रॉम बिलाल असलम्स बुक एंड आई फाउंड द पॉइंट्स इंफॉर्मेटिव देयर, तो मैंने इसको वहां से ऐड किया। related, you will find more details there. And what is missing is the false accusation on Hazrat Aisha radhiyallahu anha. That is known as slander affair. कैम्ब्रिज का मैं मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा, अगर हजरत आयशा में नोट आता है तो उसका 50% आंसर का पार्ट हजरत आयशा के ऊपर जो फॉल्स एक्यूजेशन है वो होना चाहिए। व्हाट इज फॉल्स एक्यूजेशन अगेंस्ट हर? मैं आपको कैम्ब्रिज के पेपर में दिखाता हूँ, मैं आपको पहले स्टोरी उसकी बता देता हूँ। एक इवेंट था जिससे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस वापस आ रहे थे, और वापसी पे दे स्टॉप्ड एट अ प्लेस, उसको गज़वा बनु मुस्तलक भी पूरी डिटेल भी है, लेकिन अगर आप जनरली भी लेके द मुस्लिम वर रिटर्निंग फ्रॉम एन एक्सपीडिशन, और रास्ते में एक जगह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंपेनियंस ने हॉल्ट किया, स्टॉप किया। इस इंसिडेंट को नेकलेस इंसिडेंट भी कहा जाता है, और कुछ बुक्स में स्लेंडर अफेयर या इफ्क इंसिडेंट भी यूज हुआ हुआ वर्ड। व्हाट हैपेंड, हजरत आयशा व्हेन शी स्टॉप्ड देयर, all the people stopped there, caravan रुका रास्ते में, और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जिस कैमल पे बैठती थी उसके ऊपर वो एक बॉक्स होता है जिसे हम कैरावैन कह लें, जो कैमल के ऊपर रखा जाता है एक बॉक्स पे, जिसके ऊपर बच्चे भी झूला लेते हैं जब कैमल राइड के लिए, वो कवर्ड होता था, जो ट्रेवलिंग के अंदर वुमेन के लिए यूज होता था। तो पर्दे की रूलिंग्स आ चुके थे उस वक्त तक। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जब कैरावैन रुकता था तो वो पूरा बॉक्स या जो भी है वो जो हजरत आयशा का जिस पे बैठती थी, इट वाज रिमूव्ड और नीचे रख दिया जाता था, और लोग कंपेनियंस हट जाते थे, हजरत आयशा वहां से निकलती थी और वो जहाँ पे भी लेडीज साइड है वहां चली जाती थी। नॉर्मली इट हैपेंस, और जाने से पहले वो आके बैठ जाती थी, एंड द कंपेनियंस वर रिस्पांसिबल, वो इसको फिक्स कर देते कैमल के ऊपर, एंड देन दे यूज्ड टू लीव। दिस टाइम हजरत आयशा व्हेन शी वाज रिटर्निंग बैक अकॉर्डिंग टू द टाइम जो अनाउंस हुआ था, और वो वापस आके बैठने लगी, तो ड्यूरिंग व्हाइल हर रिटर्न हर नेकलेस बीड्स ब्रोक डाउन, वो नेकलेस जो है वो बीड्स जो उसकी वो ब्रेक डाउन हो गया, और शी स्टार्टेड, और उसमें टाइम लग गया। एंड ड्यू टू दैट व्हेन शी केम बैक she found that the caravan, क्योंकि जो companions responsible है, हजरत आयशा was like it is said that she was not heavy, तो इतना light heavy weight नहीं था कि realize हो कि she is there inside or not, so they fixed it and they have left. The caravan has left. When she came, she found the caravan has already left from there. अब she was there,
एक कंपेनियन है होली प्रॉफिट के, उनका नाम आएगा, हिज नेम इज सफवान बिन मुअत्तल। देयर इज अ कंपेनियन, ही वाज रिस्पांसिबल। वो क्या करते थे, जो कैरावान चला जाता था वो पीछे पीछे उसको ट्रेस करते थे, कोई अगर वैल्यूएबल चीज रह गई है तो कलेक्ट करते थे। व्हेन ही सॉ हजरत आयशा स्टैंडिंग देयर, he was shocked and he said that they asked her, she told about the whole scenario. So he was having a camel, he asked Hazrat Aisha to sit on the camel, and he kept moving on with her and stopped at the next destination जहाँ पे caravan रुका, वहां जाकर हजरत आयशा वहां पे उतर गई और ज्वाइन कर। But the munafiqeen, the hypocrites made a rumor about Hazrat Aisha's character और false accusation लगा that she did it intentionally। और ये इतना strong accusation था, Prophet Hazrat Abu Bakr even stopped talking to Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा। And there was a time that Hazrat Aisha passed the time in great difficulty, और फिर Allah revealed the Quranic, but she is the only wife or the woman whose chastity or piousness is mentioned in Quran। Surah Nur के अंदर पूरा वाक़या है, वो रेफरेंस वहाँ पे आपने ऐड करना है। तो the verses of Surah Nur were revealed to show the chastity of Hazrat Aisha and the punishment of the false accusers। और कुछ लोगों को जो false accusation की जो वर्स है 80 lashes की, वो इसी वर्स के साथ आएगी। So the people who accuse Hazrat Aisha or any other person who accuses a chaste woman without a genuine proof, that person will be lashed with 80 lashes। ये पूरा वाक़या इसके साथ है, इसको हम स्लेंडर अफेयर या इफ्क इंसिडेंट कहते हैं। और मैं इसको पहले थोड़ा सा कैम्ब्रिज के एक मार्किंग स्कीम के साथ लिंक कर दूं। आई थिंक आई हैव ओपनड इट, सो इट विल बी गुड टू अंडरस्टैंड दैट हजरत आयशा's टॉपिक। और ये हजरत आयशा के ऊपर जो सेकंड पैराग्राफ है ना, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये सेकंड पैराग्राफ है, इसको नेकलेस इंसिडेंट भी कहते हैं। कुछ बुक्स में यू विल फाइंड कि वॉशरूम या कॉल ऑफ नेचर की वजह से इट टुक टाइम फॉर हर टू रिटर्न बैक एंड व्हेन शी वाज नॉट एबल टू जॉइन द कैरावान हैज लेफ्ट। सफवान बिन मुअत्तल, मैंने आपको नाम बताया था, उनका नाम सफवान इब्न मुअत्तल अल सलामी है, तो आप सफवान भी लिख सकते हैं, सफवान इब्न सलामी, ये नेम्स इंपॉर्टेंट है। फिर पनिशमेंट ऑफ द पीपल हु मेड अ फॉल्स एक्यूजेशन, ये आपको 4 मार्क्स में हेल्प करेगा। द लेसन्स फ्रॉम हजरत आयशा's लाइफ, पेशेंस, शी डिड नॉट रिएक्ट, she remained quiet and passed through this whole, क्योंकि everyone is like doubted her character। तो उसमें even prophet भी थोड़े टाइम तक, क्योंकि he was waiting, he did not say anything, he waited for Allah's order and Allah revealed even his she just requested from holy prophet to allow her to go to her own parents house until Allah revealed the Quranic verses। So Hazrat Aisha remained in the house of holy prophet Hazrat Abu Bakr for some time, and then verses were revealed, and then Hazrat Aisha के ऊपर जो पूरा एक टेंशन था, प्रेशर था। कुरान की कुछ और वर्सेस भी हजरत आयशा की वजह से रिवील हुई हैं, वुमेन से रिलेटेड रूलिंग्स हैं, या जो मस्जिद आयशा है मक्का के अंदर, वो उसका भी कनेक्शन इसी के, मदीना मक्का में सॉरी, जो मिकात बना हुआ है, जो लोकल लोगों के लिए उम्रे के लिए जगह बनी हुई है, वो हजरत आयशा से रिलेट कर रही है। बिकॉज होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हजरत आयशा टू गो देयर एंड टू मेक निया ऑफ द उम्रा, एंड शी वेंट मेड द उम्रा। वो आउटर मोस्ट बाउंड्री कहलाती है लोकल्स के लिए, अगर इहराम बांधना होता है उनके लिए, तो मस्जिद आयशा से रिलेट कर रही है। और भी रूलिंग्स हैं, तयम्मुम की रूलिंग जो वर्सेस हैं, दे वर रिवील्ड ड्यू टू हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आल्सो। तो इफ यू वांट यू कैन टॉक अबाउट इट। ये क्वेश्चन चूंकि ओपन क्वेश्चन था, तो उसमें हजरत आयशा का बैटल ऑफ जमल भी है, और हम क्या बैटल ऑफ जमल ड्यूरिंग हजरत अली's कैलिफेट, वहाँ डिटेल में हमारे पास आएगा। लेकिन जनरली अगर हजरत आयशा पे नोट है, अब ये देखें कैम्ब्रिज ने कितना बड़ा portion reserved किया हुआ है for the whole incident। This is called ifk incident या slender affair। It's there in my handout, but it is in Madani life of Holy Prophet, और वहाँ टॉपिक है relation with मुनाफिकीन या hypocrites। वहाँ पे मैंने ये डिटेल में लिखा हुआ है। ओके, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ ताकि अगर आपको confusion हो तो you can find it from there। biography of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, I think इसके अंदर ही एंड पे लाइफ इन मदीना वाला देख लें, या कोई भी मेरा हैंड आउट ओपन कर लें, तो उसके एंड पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यस, इसी के साथ कहीं पे दैट इज रिलेशन विद यूज है, और ये लेटर्स आ गया, इट शुड बी देयर। या यू कैन सी दैट इट्स पेज नंबर 25 हियर, ये पूरा वाक्य है। एंड यू कैन सी why did they not bring witnesses to prove it, पूरा डिस्कशन है, वो वाकया थोड़ा सा, या और भी डिटेल हो सकता है, it could be explained more। I'm just talking about the slender affair। ये hypocrites का, मुनाफिकीन का रोल था, and they took the advantage of the situation and they made it such a strong that कुछ strong believers they started trusting and believing on that जो rumor था। So this is what you have to mention। अब ये latest question हजरत आयशा का, if I'm not wrong, अभी ये पेपर में आया है भाई, तो I will just check it
If I can show you that latest paper question, फिर मैं आगे बाकी wives की topic की तरफ भी आता हूँ. I remember it was asked in October, November 2025. अभी अभी आया है. I don't know. पेपर अभी यहाँ पे है, होना चाहिए. Let's say this one. ये वाला लग रहा है मुझे. देखिए इसकी मार्किंग स्कीम अभी नहीं है, पहले बता दूं आपको. ये देखें, ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है. अक्टूबर नवंबर 2025. इसकी मार्किंग स्कीम अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आएगा. रिजल्ट से 2-3 डेज पहले हमारे पास आ जाती है, टीचर्स के पास भी. पेपर तो मेरे पास पेपर भी उसी वक्त आते हैं, बट आई गॉट इट बिकॉज बीइंग द पार्ट ऑफ कैम्ब्रिज चेकिंग वगैरह से रिलेटेड असेसिंग है, तो हमें पेपर आ जाता है. लेकिन आंसरिंग स्कीम अभी तक नहीं आई है. ये नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट का क्वेश्चन है, तो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं. अब यहाँ रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है द ईयर शी वाज मैरिड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इसमें अभी जो मार्किंग स्कीम आएगी, डेफिनेटली दे विल गिव यू मोर डिटेल्स जो हज़रत आयशा से रिलेट करती है. हर अर्ली लाइफ, द वे शी गॉट मैरिड टू होली प्रॉफिट एंड द टाइम शी पास्ड विद होली प्रॉफिट, मेजर इवेंट्स, और लास्ट डेज ऑफ होली प्रॉफिट में से रह गया एंड पे डिस्कशन में कि प्रॉफिट की लाइफ के जो लास्ट डेज थे, दे वर इन द रूम ऑफ हजरत आयशा. इट शोज द सिग्निफिकेंस दैट प्रॉफिट टुक द परमिशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाइव्स एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन्ड देयर इन द हाउस ऑफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड ही डाइड इन हर चैम्बर एंड ही इज बरीड देयर इन हर चैम्बर आल्सो, द रूम ऑफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा. इवन यू विल टॉक अबाउट अदर पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया. मेक एन आउटलाइन, प्लान इट, क्योंकि हजरत आयशा का टॉपिक अगर स्ट्रक्चर नहीं करें 10 मार्क का मुश्किल से बनता है, और उसमें आपका 40% आंसर यही फॉल्स एक्विजिशन है, रेफरेंसेस सारे उसी से रिलेट कर रहे हैं. हजरत आयशा की सेइंग्स है, एंड शी सेड वन थिंग, that is, she said, if I want to see myself in the skin of any personality, that is Hazrat Sauda. Why do you think Hazrat Aisha said that statement about Hazrat Sauda? Correct. Actually, when Hazrat Aisha came in the marriage of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Sauda was already the wife of Holy Prophet, and instead of being jealous and instead of creating challenges for her, she accommodated her, helped her out to settle down, and she gave her time, which Prophet has reserved for Hazrat Sauda. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Aisha, Hazrat Sauda gave that time for Hazrat Aisha also. So it's opposite situation, which is normally not common actually. So that's the reason why Hazrat Aisha said that statement. मैंने यहाँ लिखी भी नहीं है, I don't know why, लेकिन Hazrat Sauda के topic में कहीं पे आपको मिल जाएगी. तो that is going to make your answer stronger, and that's a good thing. Hazrat Aisha का title क्या है? There is a title for her. It's a very common name. Humaira. Why she was called Humaira? Humaira is in Arabic language, is taken from Ahmar. Ahmar means pink. And Hazrat Aisha's fair complexion, Prophet used to call her as Humaira because of that one. So that is the title of Hazrat Aisha. She also became famous as Siddiqa also, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq, and that's the reason why she got the title of Siddiqa. Yes, you were raising the hand. Hazrat Aisha Hazrat Khadija नहीं है. हजरत वो मैंने बता दिया आपको. हजरत आयशा हजरत खदीजा, हजरत खदीजा ऑलरेडी डाइड व्हेन प्रॉपर्ली प्रॉफिट मैरिड टू हर. लेकिन जो आपको पॉइंट, ये नेचुरल सिस्टम है, ये नेचुरल सिस्टम है, इसमें जेलसी नहीं थी. प्रॉफिट वाज, मैं हजरत खदीजा में एक्सप्लेन कर चुका हूं व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस सेइंग कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वंस रिमेंबरिंग, प्रॉफिट यूज्ड टू रिमेंबर हजरत खदीजा अ लॉट. तो वंस ही वाज रिमेंबरिंग हजरत खदीजा, तो हजरत आयशा सेड शी वाज एन ओल्ड वुमन एंड शी डाइड. Allah has blessed you with better women. तो ये उस पॉइंट की तरफ इशारा जो आप कह रहे हैं, ये उसी के रिलेट कर रहे हैं. तो ये जेलसी नहीं है, मतलब एक नेचुरल सिस्टम है. और इसीलिए हजरत सौदा और हजरत आयशा में जो बॉन्डिंग थी, उसका रीजन यही था कि हजरत सौदा वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट, लाइक फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी, एंड शी वाज केयरिंग एंड कोऑपरेटिव. हजरत सौदा इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट. In her presence, Prophet married other women also, and she did not object on that. Okay. So that is, Hazrat Aisha was the third one. After that one, so you can see. अब we are talking about Hazrat Sauda. Hazrat Sauda पे डिटेल बन जाती है आराम से, ठीक है. जनरली जितनी भी वाइफ्स हैं, अभी मैंने हजरत खदीजा की बात की, हजरत आयशा की पहले इसलिए कर ली क्योंकि हजरत आयशा was the only wife who was not married to anyone before marrying Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, she is the only wife. The rest of the wives were either widows or they were divorced, but they were widowed. हजरत आयशा ने. अब ये भी पॉइंट है, ये शुरू में पता होना चाहिए, प्रॉफिट्स की जो वाइफ्स हैं, दे आर स्पिरिचुअल मदर्स एंड दे आर नॉट अलाउड टू
marry anyone after the demise of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So none of the wives of Holy Prophet got married after that one, either Hazrat Aisha or any other wife of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now we are moving to the rest of the wives. अब जितनी भी बाकी wives हैं ना उसमें तीन चार चीजें बड़ी common है जो आपने अपने mind में रखनी है आंसर start करने से पहले. First of all, her life before marriage with Holy Prophet. Were they the wives of did they lose their husband in the battle, or did their husbands left them, or they got separation or divorce or something like that? How did they connect with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Even if you have information, were they earliest converts or later converts or something like that? And then you're going to talk about a paragraph as a general paragraph for all the wives: kind, modest, loving, caring. And I suggest you to have 2-3 points which makes that wife different from the rest of the wives. Like when Hazrat Sauda ka Hazrat Aisha ke topic mein bata diya, she dedicated her time for Hazrat Aisha. She was flexible and comfortable with the rest of the wives instead of being jealous. उनके साथ कोई उनका argument नहीं था. Even Prophet sallallahu alaihi wasallam इन्हीं के बारे में कहा हुआ है, I think she took special permission from Holy Prophet to leave Muzdalifa early at night to avoid the congestion with the men. So Prophet allowed her. जब हम हज का टॉपिक पढ़ेंगे, हज में ये होता है कि pilgrim have to stay at Muzdalifa whole night till next day. और फजर की नमाज के बाद अब जाते हैं. हजरत सौदा took the special permission. यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, देखें. She took a permission to leave for Muzdalifa earlier as to avoid the crowd. Prophet allowed her. और भी कुछ चीजें हैं जो इनको significant करती हैं और बाकी चीजें common है, जैसे loving, caring है. अच्छा, अब ये इनकी early life है. Her husband name, previous husband name, and of course all of them have previous husband's name here. You will write it. Did they die or did they leave them or whatever is the scenario of the mention karna hai. Hazrat Sauda is among the earliest converts of Islam. The first migration to Abyssinia हुआ था, उसमें she was with her husband. So first migration to Abyssinia में इनका भी नाम लिख सकते हैं with her husband's name also if you want to write the name there. She migrated there and she lost her husband there. Her husband died. अब now none of her family was there जो उनको सपोर्ट करे क्योंकि उनकी बाकी फैमिली नॉन बिलीवर थी. हमारी सोसाइटी में ये होता है ना, ये मेरी मदर है, मेरी सिस्टर की तरह है. ये इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. आप वर्बली किसी को मदर या सिस्टर बोल दें तो वो रियल मदर या रियल सिस्टर नहीं बन जाता. तो इसलिए द ओनली वे एट दैट टाइम इट वाज पॉसिबल टू टेक केयर ऑफ हर वाज दैट समवन गेट मैरिड. प्रॉफिट एट द वेरी सेम टाइम लॉस्ट हजरत खदीजा and he was in need of someone to take care of the kids at home. उसमें जो Prophet की especially you're going to talk about them, तो वो आपने वहां पे क्या करना है, मेंशन करना है. ठीक हो गया. अब how she got married to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam इसकी डिटेल है. मैं एक बुक पढ़ रहा था, वहां लिखा हुआ है. तो she was in Abyssinia. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पहले तैयार हो गया, सारा कुछ हो गया, and then she was called from Abyssinia and she came to Makkah to Holy Prophet और फिर मैरिज ऑलरेडी हो चुकी थी उनकी. She is the one who took Holy Prophet's 2 daughters with her to Medina. जब Prophet sallallahu alaihi wasallam ने मक्का से मदीना माइग्रेट की तो दो daughters Holy Prophet की कौन थी जो हजरत सौदा के साथ माइग्रेट करके गई? हजरत उम्मे कुलसूम एंड हजरत फातिमा. ग्रेट. तो वहां पे आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं. बाकी Prophet sallallahu alaihi wasallam की हजरत आयशा की सेइंग मैंने यहाँ लिखी हुई है. I did not wish seeing any woman except Sauda bint Zamma if I could be in her skeleton. Like that is bonding between Hazrat Aisha and Hazrat Sauda, which could be there. Narrated 5 hadith, very punctual in the prayers. इसमें ना और भी details हैं. मेरे नीचे handout में और भी points हैं, आप add कर सकते हैं, but don't add so many points. I will suggest you to have 8 to 10 points about other wives. और जो हजरत खदीजा और हजरत आयशा उस पर डिटेल आपके पास 15 points होने चाहिए. बाकियों के बाद आपके पास 8 to 10 is perfectly fine. हजरत आयशा हमने भी डिस्कस कर लिया. अब मैं हर वाइफ का ना थोड़ा थोड़ा आपको एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ, बाकी आप जो है ना पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. हजरत हफ्सा डॉटर ऑफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, शी इज अमंग द वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट जो आउटस्पोकन थी, बोल देती थी ऑन द स्पॉट. She is the only wife of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam who got divorced by Holy Prophet, and then Hazrat Jibreel was sent to ask Hazrat Hafsa radhiyallahu anha, and Hazrat because of reacting was saying something in reaction there, immediate response जो है. ठीक है. और दूसरा हजरत हफ्सा और 2 और वाइफ से रिलेटेड एक कुरान में वाकया है. सूरह तहरीम. वेरी गुड. सूरह तहरीम का रेफरेंस आएगा और उसके अंदर जो है ना वो हनी वाला इंसिडेंट है. मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि वो थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है. रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें ऐड कर सकते हैं. उस वाकये को आप लिंक कर सकते हैं. ठीक है.
तो ये कुरान की सूरह तहरीम की बिल्कुल शुरू की वर्स है। वही ज़सर नबी इला बाज़ी अज़वाजिही। सूरह तहरीम को नाम इसीलिए दिया है क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड समथिंग प्रोहिबिटेड ऑन हिम व्हिच इज अलाउड इन इस्लाम टू मेक वन वाइफ हैप्पी। और दूसरे की वो जेलसी थोड़ी सी होती है, वो कुछ खा के आए हनी, और वो हनी की खुशबू जो थी दूसरी वाइफ को बताया, प्रॉफिट की दूसरी वाइफ को जेलसी ज़ाहिर ने कहा इसमें तो बहुत खराब स्मेल आ रही, तो प्रॉफिट ने कहा मैं आइंदा इसको कभी नहीं खाऊंगा, ये मेरे ऊपर आराम है। अल्लाह रिवील द कुरान। तो अगर आप उस डेप्थ में जाना चाहते हैं, गो फॉर इट, आई विल सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर दैट, इजी रखें। तो हजरत हफ्सा का अगर प्रॉफिट की लाइफ में रोल आता है तो आपने फर्स्ट हस्बैंड का नाम, मार्टारडम इन बैटल ऑफ ओहद, उनकी डेथ हो गई थी। देन शी गॉट मैरिड टू होली, इस पे भी डिटेल है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। हजरत उस्मान के लिए मैरिज हजरत उम्मे कुलसूम से हुई, ठीक है। और इधर उसी टाइम का इवेंट है सारा, उसकी अगर आप डेप्थ में जानना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंड द प्रपोजल फॉर हजरत उमर's डॉटर, जो हजरत हफ्सा का यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया व्हेन शी वाज डिवोर्स्ड, अल्लाह सेंड द मैसेज, हजरत जिब्राइल वाज सेंट एंड आस्क्ड होली प्रॉफिट कि आप उनको वापस रीज्वाइन करें और वो मैरिज कंटिन्यू। वो उसकी मतलब आउटस्पोकन थी, वो बोल देते हैं, जैसे हम आजकल के वर्ड में कहें कि जवाब दे देना या आगे से कुछ बोल देना, हर एक की अपनी नेचर होती है। अब उसकी डिटेल नहीं है अभी मेरे पास है, लेकिन होगी डेफिनेटली, कोई स्टेटमेंट होगा, कोई बात होगी जिसके ऊपर पूरा वाकया होगा। लेकिन जो मेरे नॉलेज में यही है कि दैट सम वन इवेंट वाज देयर इन व्हिच शी रिएक्टेड विद प्रॉफिट। नॉर्मली जैसे होता है ना, और इसकी भी अल्लाह की तरफ से हिकमत होती है, क्योंकि ये कमिंग जनरेशंस के लिए कि अगर कोई जवाब दे दे कोई बात हो और डिवोर्स का केस आ जाता है, तलाक हो जाती है, तो उसको रिटर्न करने का तरीका, प्रोसेस भी इनडायरेक्टली टीच किया जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डेस्टिन्ड होती हैं फॉर कमिंग जनरेशंस एज वेल। तो बट द शी वाज अगेन, शी रिमेन्ड द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट एंड शी इज अमंग द जो उम्महातुल मोमिनीन है, मदर्स ऑफ फेथफुल के इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट हैव किड्स फ्रॉम एनी ऑफ हिज वाइव्स अदर देन हजरत खदीजा एंड वन किड फ्रॉम हिज कॉप्टिव वुमेन वाइफ मारिया किप्तिया, जो वाइफ की कैटेगरी में भी जा सकती हैं, और उसको हम कॉप्टिव या बांदी जिसे हम कहते हैं, स्लेव वुमेन जो है, उसके साथ वहां पे। तो प्रॉफिट की और किसी वाइफ से भी प्रॉफिट से कोई किड नहीं है, दे हैव किड फ्रॉम द प्रीवियस हस्बैंड इफ दे आर, वो इस्लामिकली परमिशन उस वक्त की थी, वो एक अलग डिस्कशन है, ठीक है, वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, इसमें ना एक पॉइंट खाली बताता हूँ, बाकी सारी चीजें सेम है। शी इज नोन एज उम्मुल मसाकिन, ये कीवर्ड आपको यहाँ पे एग्जांपल में आएगा। एंड शी इज अमंग दोज वाइव्स ऑफ होली प्रॉफिट हु डाइड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी वाइफ कौन है जिनकी प्रॉफिट की लाइफ में डेथ हुई है? हजरत खदीजा, गुड। हजरत खदीजा और दूसरी हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा। प्रॉफिट की दो वाइफ्स हैं जिनका नाम ज़ैनब है, मेक श्योर। वन इज ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा एंड द अदर वन इज, मैंने अभी पहुंचा नहीं हुआ था, वो वाइफ हैं जिनको होली प्रॉफिट ने पहले हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश, ग्रेट, ठीक है, अभी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा में बाकी सारे पॉइंट सेम है, गॉड फेयरिंग, एंड शी वाज फर्स्ट मैरिड टू अब्दुल्ला बिन जहश हु गॉट मार्टायर्ड इन बैटल ऑफ ओहद। ज्यादातर जो वाइफ्स यहाँ पे आपने देखी, हजरत हफ्सा हो गया, हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा हो गया, इनके हस्बैंड्स दे वर पार्टिसिपेटिंग इन बैटल ऑफ ओहद, दे गॉट मार्टायर्ड एंड नन ऑफ द फैमिली मेंबर वाज देयर जो उनको टेक रिस्पांसिबिलिटी ले, क्योंकि उनकी फैमिली ज्यादातर कन्वर्ट नहीं थी। If she will go back to her family, she will be forced to leave Islam. So that's the reason why Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam married her. So Hazrat Zainab bint Khuzaima and Ummul Masakin ka title, she died at the age of 30 years and her funeral prayer Prophet led. अच्छा, ये कई दफा हम जब MCQs वगैरह और जो कोई competitions होते हैं, डिबेट होते हैं, वहां पूछते हैं Prophet की वो कौन सी वाइफ है जिनका जनाजा Prophet ने पढ़ाया था। तो ज्यादातर बच्चे गलती से हजरत खदीजा बोलते हैं। हजरत खदीजा का जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्योंकि उस वक्त फ्यूनरल प्रेयर की रूलिंग्स नहीं आए थे, ठीक है, वो डिफरेंट वे था। हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा के टाइम पे शी इज द ओनली वाइफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेड एट जनाजा प्रेयर, क्योंकि बाकी वाइफ्स की डेथ प्रॉफिट की डेथ के बाद हुई है, ठीक हो गया। तो शी इज द सेकंड वाइफ हु डाइड इन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। हजरत उम्मे सलामा, आपने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पढ़ा हुआ है, ठीक है, और वहां एक की टर्निंग पॉइंट हजरत उम्मे सलामा का, शी इज द वन हु एडवाइज्ड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल लिखा हुआ है हजरत उम्मे सलामा पे, आई थिंक आई रोट a lot. तो मुझे जहां से इंफॉर्मेशन मिला था reliable, I found too many things there. She is among the knowledgeable wives of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. But again, you will begin your answer with her. Is she earliest converts or not? Her previous husband's name. Did she have kids from her previous husband? Yes.
and then you will go on further. Dedication for Islam and other points will be there. But you must mention Prophet she also accompanied Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in ये बनु मुस्तलक वही इवेंट है जिसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा वापसी पे जो एक्विजिशन हुआ था. She accompanied Holy Prophet in Taif. She accompanied Prophet in Khaybar, Hunain, and conquest of Makkah. और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी आना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर डिस्कस हो गया. शी इज द वन हु सजेस्टेड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू गेट हिज हेड शेव फर्स्ट एंड देन आस्क द कंपेनियंस. ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के साथ भी इसको आप लिंक कर सकते हैं. ठीक है. एंड शी डाइड, आई थिंक शी इज द वन हु overlived all the other wives of Holy Prophet, if I'm not wrong, because one of the wife of Holy Prophet, yeah, she's Hazrat Salama. She died. She's the last wife of Holy Prophet to die. So that is another thing which Hazrat Aisha died at 58 age, and she was the youngest wife of Holy Prophet at the time of Prophet that, but she died earlier. Hazrat Salama died later. She died in 62 age. So she is the one who overlived all the other wives of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And of course, all the wives are buried in Jannatul Baqi. All right, except Hazrat Khadija because she died in Makkah and she is buried in Jannatul Mualla. All right. Zainab bint Jahash पे डिटेल है. मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं. Prophet sallallahu alaihi wasallam के जो adopted son है Hazrat Zaid bin Haris जो है. Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted Hazrat Zainab bint Jahash to marry Hazrat Zaid bin Haris जो adopted son है. लेकिन हजरत जैनब के जो भाई थे, he was not comfortable with that and he said that Zaid is right now free but he had tag of being a slave once, so we cannot give our sister to a person who had tag of being slave. But Allah revealed the verses of Quran, Surah Ahzab. Surah Ahzab की verses reveal हुई. Sorry, हजरत जैनब बिन्त जहश जो है ना, ये इनकी पहले शादी जो हुई है वो हजरत जैद बिन हारिस से हुई है, प्रॉफिट के अडॉप्टेड सन जो है. ठीक है. जब शुरू में मैरिज प्रपोजल किया तो हजरत जैद जो जैनब के ब्रदर हैं उन्होंने उसको डिनाई कर दिया, नो कर दिया, क्योंकि जाहिर है स्लेवरी का. अब आगे सुने. अल्लाह रिवील्ड अ कुरानिक वर्स. Allah revealed a Quranic verse in which it is said when Muhammad sallallahu alaihi wasallam has ordered for something, it should not be denied. क्योंकि prophet का order, it's a rule, like law बन जाता है. So her brother accepted it because Allah has ordered for that, but the marriage did not last longer, and the marriage came to an end after like a little time period. And then Allah asked Holy Prophet to marry Hazrat Zainab bint Jahash. अब ये son and adopted son है Holy Prophet के. Allah wanted to clarify the rule to the people that adopted son is not like a real son. इसलिए क्योंकि जो लोगों में एक मिथ बना हुआ था, जो एक कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया हुआ था, तो अल्लाह वांटेड टू टेल द पीपल. फिर सूरह अहज़ाब की वर्सेस है, पूरा वाक़या इसके ऊपर कि जो आपके जो एडॉप्टेड सन्स होते हैं, दे आर नॉट योर रियल सन्स एंड दे आर योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आप उनको कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप इसको जो कुरान के उदऊहुन्ना लिआबाइहिन्ना, कॉल देम विद योर रियल पेरेंट्स नेम. इफ नॉट नोन और डोंट वांट टू कॉल देम विद रियल नेम्स, then they are your friends or your like part of your family, like you can connect with that one. लेकिन आप उनको रियल फादर के नेम से ही कनेक्ट करते हैं. तो नाम कोई अपनी जो पेरेंट की फादर की होती है उसको चेंज नहीं कर सकता. तो ये बड़ा जरूरी इवेंट था, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया. यू कैन फाइंड आउट द डिटेल हियर. और देन प्रॉफिट वाज इंस्ट्रक्टेड, प्रॉफिट मैरिड टू हजरत ज़ैनब बिन्त जहश. और ये थोड़ा सा डिटेल इसके अंदर आएगा. कुरान के अंदर किसी कंपेनियन का डायरेक्टली नेम नहीं है एक्सेप्ट हजरत ज़ैद बिन हारिस. हम जब ये गवर्नमेंट के हायर लेवल के जो CSS के एग्जाम्स की प्रिपरेशन किसी को करवाते हैं या कोई नॉर्मली फेडरल पब्लिक सर्विस के होते हैं, तो वहां पे ये सवाल अक्सर पूछ रहे होते हैं कि कुरान में होली प्रॉफिट के किस सहाबी का नाम है, और वो डॉच करते हैं. ज़ैद बिन साबित भी लिख देते हैं, ज़ैद बिन हारिस भी लिख देते हैं. तो ज़ैद बिन हारिस द अडॉप्टेड सन ये है. कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन, ज़ैद वर्ड इज यूज्ड इन कुरान. सूरह अहज़ाब है जुज़ 23 के सेकंड पेज के ऊपर पूरा वाक़या है वहां पे. तो ये उसके इससे रिलेटेड है, रूलिंग्स रिलेटेड टू अडॉप्टेड किड्स. सो हजरत ज़ैनब बिन्त जहश लेटर मैरिड टू होली प्रॉफिट. ये वो है जिनके साथ हनी इंसिडेंट और कनेक्ट हो रहा है. तो इफ यू आर लिंकिंग दैट वन, तो शी इज अमंग दोस जो उस इवेंट में इंक्लूड आ रही है. हजरत सफिया आसान है. शी इज वन ऑफ द वाइफ हु वाज अ ज्यू. शी वाज अ डॉटर ऑफ हुयई इब्न अख्तब. खैबर एक्सपीडिशन से लिंक कर रहा है. इंसिडेंट कनेक्ट हो रहा है. सॉरी सर, आपने किस वाइफ का कहा कि हनी इंसिडेंट उनसे कनेक्ट हो रहा है? ज़ैनब बिन्त जहश का भी. ओके सर. हाँ, मेरा ख्याल है, चेक कर लेंगे. मैं क्योंकि इतने डिटेल में इवेंट में नहीं क्यों, 3 वाइफ्स उससे कनेक्ट है एक्चुअली.
ठीक है, तो वो वाकया वहां पे आप पढ़ेंगे सूरह तहरीम में, जुज 29 की सूरह या 28 की है मेरे ख्याल में, कुरान के सिपारे में आपको मिल जाएगी, लेकिन अगेन इतना जरूरी नहीं है, आपको बुक में मिलता है, रीड करिए। हजरत सफिया, शी वाज द ज्यू, लाइक शी वाज द डॉटर ऑफ बनु नदीर ट्राइब लीडर हुयई बिन अख्तब। खैबर एक्सपीडिशन के बाद जो कैप्टिव्स ऑफ वॉर आए उसमें हजरत सफिया भी थी। शी इज अमंग द रिचेस्ट वाइव्स ऑफ होली प्रॉफिट। व्हेन शी केम टू द मैरिज ऑफ होली प्रॉफिट शी ब्रॉट अ लॉट ऑफ, ये भी उसमें लिंक्ड है इनडायरेक्टली, क्योंकि अच्छा इस हजरत सफिया को वैसे भी जो दूसरी वाइफ्स थी उनके साथ इशू ये था, बिकॉज डेफिनेटली शी ब्रॉट अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, शी बिकेम फेमस, सो द रेस्ट ऑफ द वाइफ वर नॉट हैप्पी विद दैट। सो वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड अ रिमार्क, यू आर अ डॉटर ऑफ अ ज्यू। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैंडल्ड द सिचुएशन। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, डोंट यू लाइक दैट योर फादर इज अ प्रॉफिट, योर अंकल इज अ प्रॉफिट एंड योर हस्बैंड इज आल्सो अ प्रॉफिट। Prophet father is actually Hazrat Musa, actually she was a descendant, Bani Israel से है ना, Bani Israel brother Hazrat Musa के भाई हारून, और husband is a prophet. So prophet encouraged her by giving her like more appreciation कि you are better than others. ताकि ये भी point है, I think ये मैंने यहाँ mention किया हुआ है। So when you read it, you will find a lot of information here about their personalities. I will stop the discussion here. But the rest of the wives, if you read it, it will be easier. If मैं अगर आपको explain भी करूँगा, it will take our time. We have Habiba, the daughter of Abu Sufyan. Original name was Ramla. इसको आप डेवलप करेंगे। ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का से पहले जब ना अबू सुफियान वापस आए, he tried to continue the treaty and all of these things, फिर वो बिस्तर पे बैठने लगे तो she stopped and all, ये पूरा उन्होंने नीचे से बिस्तर ले लिया था। हाँ, तो आप मेंशन कर सकते हैं एंड तो ये कनेक्ट हो सकता है उस इवेंट से। हजरत मारिया इज द वन व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, शी वाज गिवन एज अ गिफ्ट बाय व्हेन प्रॉफिट सेंट लेटर्स। एग्जैक्टली प्रॉफिट ने जब लेटर्स भेजे थे, वो पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। और अच्छा, कुछ बुक्स में हजरत मैमूना भी है और हजरत रेहाना भी है, आप वो भी वाइफ्स हैं एक्चुअली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, अगेन 4 वाइफ जरूरी हैं। I will show you the Cambridge paper जिसमें recently थोड़ा सा tricky question आया हुआ था, तो I want you to have a look at it before I wind up my discussion, today's discussion। ये question आया था अक्टूबर-नवंबर 2022 में, लास्ट में वाइफ पे, जो थोड़ा सा unexpected था। They gave सौदा, आयशा, हफ्सा एंड उम्मे सलामा, और 2 इसमें से लिखनी थी। तो स्टूडेंट्स के पास सेफ साइड हजरत आयशा था, they have prepared, but they struggled if they have not read the rest। I will ask you to prepare first 4 wives, लाजमी करके जाया करें एग्जाम के अंदर at least, बाकी आप रिस्क ले सकते हैं। कई दफा स्कूल मैंने स्टूडेंट को कहा फर्स्ट 4 करो, बाकी छोड़ सकते हो, उसने छोड़ दी। उसके स्कूल में लिखा राइट एन अकाउंट ऑफ द वाइव्स ऑफ होली प्रॉफिट अदर देन द फर्स्ट 4। तो ऐसा कैम्ब्रिज भी कर सकता है। तो कीप इन माइंड कि इस तरह की सिचुएशन हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, ये चॉइस क्वेश्चन है, तो फिर आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ फोकस करें। इतना आप रिस्क, क्योंकि आप सारी वाइव्स को इतनी डिटेल नहीं कर सकते, की पॉइंट्स निकाल लें, बट it's not easy. So if you ask me to prepare a note on all of these wives as a 10 mark, there are 45 to 50 personalities in First Islamic community. We cannot prepare all of them. So you should have some techniques, flow chart आप बनाए जिससे आप इसको develop कर सकते हैं।